देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। पंजाब में एक ही रात में सुरक्षा एजेंसियों के दो महत्वपूर्ण ठिकानों के आसपास हुए संदिग्ध विस्फोटों ने पूरे राज्य में दहशत और चिंता का माहौल बना दिया है। पहला धमाका रात 8:15 पर जालंधर में बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर हेडक्वार्टर के गेट के बाहर एक एक्टिवा स्कूटर में हुआ। वहीं दूसरा धमाका रात करीब 10:30 पर अमृतसर के खासा इलाके में आर्मी कैंप के बाहर हुआ। मात्र 3 घंटे के अंतराल में इन दो घटनाओं ने सीमावर्ती राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जालंधर के बीएसएफ हेडक्वार्टर के मुख्य गेट के बाहर हुए धमाके की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि स्कूटर में अचानक भीषण आग और धमाका होता है। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि आसपास के इलाके में शोर मच गया। पुलिस और बीएसएफ की टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर क्षेत्र को घेर लिया। शुरुआती जांच में यह संदिग्ध विस्फोट माना जा रहा है। इस हमले के बाद अमृतसर ग्रामीण के एसएसपी सुहेल मीर कासिम ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है, सुनिए बयान। ਅੱਜ ਰਾਤ ਕਰੀਬਨ 11:15 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਊਡ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਸ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸਾ ਕੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਉਹ 'ਚੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਸਮਵਨ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਐਂਡ ਥਰੋਨ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਵਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਰ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਸਮ ਲੋ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਐਂਡ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। बट असी जॉइंटली इनू इंस्पैक्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बाकी द फोरेंसिक टीम्स एंड द BDS टीम्स आर ऑन द स्पॉट एंड विल अपडेट फर्दर। थैंक यू। आज रात धमाकों के बाद पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि आज मैं अमृतसर आया था ताकि कल सेना क्षेत्र में हुए कम तीव्रता वाले धमाके वाली जगह का मुआयना कर सकूं। घटनास्थल का दौरा करने के बाद मैंने सेना के अधिकारियों से मिलकर आपसी सुरक्षा चिंताओं पर चर्चा की। अब तक किसी ने भी इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन हमारा मानना है कि ये ऑपरेशन सिंदूर की बरसी पर पंजाब में अशांति फैलाने की पाकिस्तानी की ISI की साजिश का हिस्सा हो सकता है। सुनिए। ਅੱਜ मैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਆਰਮੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਾ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਮੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਸਰਨਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਸਰਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤੀ 10:50 ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਖਾਸਾ ਆਰਮੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ SSP ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੌਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਕੁਐਡਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ BSF ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਕਸਪਰਟਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟਸ ਤੇ ਸੈਂਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਏ ਹੈਗੇ ਫॉर ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅੰਡਰ ਦਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਲਾਅ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਇਨ ਕਲੋਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦੀ ਆਰਮੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮਲਟੀਪਲ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਇਨਪੁਟਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक ਤੇ ਮੈਟੀਕੂਲਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸਾਈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਸੀਗਾ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਦਾ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਹਜੇ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਊਗੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ
ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨਸ ISI's ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਟੂ ਕਾਜ਼ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਾਰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਿਨਰਜਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਪੇਟ੍ਰੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ। ਅੱਜ मैं अमृतसर पंजाब में हुए इन धमाकों के बाद शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने भगवंत मान सरकार पर तीखा हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कहा है। जी, बहुत डूंगी साजिश का शिकार, गहरी साजिश का शिकार। लगातार आप जो इंसिडेंट्स हो रही हैं उसको जोड़कर देखेंगे तो खतरनाक ट्रेंड एक पंजाब में पीस को डिस्टर्ब करने के लिए चल रहा। पहले ग्रेनेड अटैक हो रहे हैं पुलिस स्टेशन के ऊपर, पुलिस चौकीज के ऊपर, इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर के ऊपर हो चुका, बीजेपी के हेड ऑफिस के ऊपर चंडीगढ़ में हो चुका। उसके बाद बीजेपी के एक वर्कर के शॉप के ऊपर गुरदासपुर में हुआ, अमृतसर में मंदिर के पास हुआ। तो ये सभी इस बात का संकेत देते हैं कि बहुत बड़ी कोई ताकत पंजाब की अमन को डिस्टर्ब करना चाहती। लेकिन जो कल हुआ, पहले पैरामिलिट्री फोर्स BSF के हेडक्वार्टर के गेट के ऊपर, दूसरा अमृतसर आर्मी के ऊपर। तो पुलिस से आगे पैरामिलिट्री भी आ गई और आर्मी भी आ गई। इसके ऊपर तो हमारे पास कोई है नहीं। तो लेकिन ना स्टेट गवर्नमेंट जाग रही है, ना केंद्र सरकार कोई तवज्जो दे रही है। जो बाकी क्राइम है वो तो एक्सट्रीम पे पहुंचा हुआ है। जो यहाँ लूटपाट हो रही है, कत्ल हो रहे हैं, डाके बज रहे हैं, फरोख्ती का काम, वो तो अब गिनती में नहीं रहा। तो आप देखिए ऐसी स्थिति में स्टेट के लोग कैसे दिन निकाले। डॉक्टर अम्बेडकर साहब की जो स्टैचू है उनके ऊपर कितनी एक के बाद एक उनको अपमानित करने की इंसिडेंट हुई। तो कोई ताकत ऐसी है जो डिस्टेबलाइज करनी चाहती है कंट्री को भी, पंजाब को भी। ये बॉर्डर स्टेट है। मैं सरकारों को कहना चाहता हूं कि उनको जागना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट तो बिल्कुल सोई हुई है, वो तो अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए। इनका इंटेलिजेंस फेलियर ऐसा बात होता है। भगवंत मान जी तो पूरी बस भर के ड्रामे कर रहे हैं दिल्ली में जाके, कभी राष्ट्रपति भवन में, कभी कहीं जाके। ये तो राजनीति कर रहे हैं लोग, इनको जिम्मेवारियों का ही एहसास नहीं है। तो मैं स्टेट गवर्नमेंट को कहना चाहता हूं कि आप नहीं संभाल पा रहे। अब तो आपका वैसे ही 7 राज्यसभा मेंबर ही चले गए, आप इस लायक ही नहीं रहे, आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। तो आप अच्छा है इस्तीफा देके साइड पे हो जाओ। स्टेट के ऊपर तस्क करना चाहिए, इसकी बहुत बड़े लेवल के ऊपर जांच होनी चाहिए। जो असली शक्ति है जो पंजाब को डिस्टर्ब करना चाहती है उसकी तरफ बढ़ना चाहिए, उन लोगों को पकड़ना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। पंजाब सीमावर्ती राज्य होने के कारण हमेशा संवेदनशील रहा है। हाल ही में शंभू रेलवे ट्रैक पर भी धमाका हुआ था। सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल दोनों घटनाओं के बीच संभावित लिंक की जांच कर रही हैं। फिलहाल दोनों मामलों में किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन विशेषज्ञ इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती मान रहे हैं। पंजाब पुलिस के उच्च अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद है। दोनों घटनाओं में जान माल का नुकसान नहीं होने की खबर राहत भरी है, लेकिन सुरक्षा लापरवाही के सवाल उठ रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया है। HERO हीरो। पापा ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए,
क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो।